Welcome to our online class from High Star North City Public Secondary School and College. This is our bio class of class 8 and 9. And we will continue chapter number 7, bioenergetics, and our lecture number is 6. Our topic is importance of anaerobic respiration. As we have discussed earlier, that anaerobic respiration is an emergency arrangement of energy which has an advantage that organism can survive without oxygen or can work for short period with some pace for short period. The other product of anaerobic respiration are acids. Vinegars are also organic acids that are produced commercially by acidic formulation. Anaerobic respiration also produces ethyl alcohol. This process is commercially utilized by making alcoholic products like beer, wines, and other beverages. Baking industries is also based on it because anaerobic respiration also produces carbon dioxide, which gives fluffy and soft shapes to cake and breads. Also, breakdown of starch into complex sugar to form bread and pizza. एनारोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन तवानाई के हुसूल का एक इमरजेंसी अरेंजमेंट भी है, और जिसका फ़ायदा ये है कि जानदार बगैर ऑक्सीजन के ज़िंदा रह सकता है या कुछ अरसे के लिए इस रफ्तार से काम को जारी रख सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान पैदा होने वाली जो प्रोडक्ट हैं उसमें एसिड्स हैं, जैसे कि सिरका, ये सनती तौर पर भी पैदा किए जाते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इथाइल अल्कोहल भी पैदा होता है। ये अमल भी सनती तौर पर मुख्तलिफ अल्कोहल मशरूबात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बियर है, वाइन और दूसरे मशरूबात। बेकरी की सनत का इन्हिसार भी इसी पर होता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है, जो केक और डबल को नरम और मुलायम रखने के लिए ज़रूरी होती है। ये सादा शुगर को तब्दील करके डबल और पिज़्ज़ा का बेस भी बनाता है। Our next topic is aerobic respiration. Types of respiration where food breakdown occurs in the presence of oxygen to produce energy. It is a method of respiration found in majority of organisms. It takes place in the presence of free oxygen, oxidizing the food and releasing the maximum amount of energy, that is 2,827 kilojoules per mole of glucose or 36 ATP molecules per glucose. The end product of aerobic respiration are carbon dioxide and water. Glucose plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy, 36 ATP. एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जहाँ पर फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मदद से टूटकर एनर्जी पैदा करते हैं। ये रेस्पिरेशन का वो तरीक़ाकार है जो जानदारों में आमतौर पर पाया जाता है। ये आज़ाद ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। ये फूड मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में तवानाई पैदा करता है। यानी ग्लूकोज का मोल कितने मोल होती है इसमें ग्लूकोज जो है वो 2,827 किलोजूल्स पर मोल आपकी एनर्जी रिलीज होती है। इस रेस्पिरेशन में जो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, जैसे कि आपको इक्वेशन में दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration take place in 3 steps at different places in the cell. Aerobic respiration जो है वो 3 steps में होता है हमारे cells के अंदर। पहला है glycolysis. Glyco means sugar and lysis means breakdown. First stage is that stage where a molecules of glucose 6 carbon sugar is broken down into 2 molecules of pyruvic acid, 3 carbon acid. It does not require any oxygen. It takes place in both aerobic and anaerobic respiration. The splitting of glucose releases a small amount of energy of glucose, which is enough to generate 2 molecules of ATP. Glycolysis is a complex sequence of reactions all over in cytosol. मैकेनिज्म आपको बताया, पहला स्टेज है जहाँ पर ग्लूकोज जो है
6 कार्बन शुगर जो है वो 3 कार्बन शुगर पायरूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। इस अमल के दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये अमल दोनों किस्म के रेस्पिरेशन यानी कि एरोरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के इस तरह के बिखरने से थोड़ी सी मिकदार में एनर्जी पैदा होती है, जो कि एटीपी पैदा करने 2 एटीपी पैदा करने के लिए काफ़ी होती है। ग्लाइकोलाइसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो बहुत से केमिकल रिएक्शंस पर मुश्तमिल होता है। सेकेंड है क्रेब्स और सिट्रिक एसिड साइकिल। The second stage of aerobic respiration, in which pyruvic acid produced during glycolysis enter the mitochondria where oxygen available. Cellular respiration uses this oxygen to break pyruvic acid completely into carbon dioxide and water in a cyclic manner. During Krebs cycle, some ATP produce and some coenzymes like NAD and FAD are reduced to NADH2 and FADH2. It takes place in the matrix of mitochondria. एरोरोबिक रेस्पिरेशन का ये दूसरा स्टेज है जहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पैदा होने वाले पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल हो जाता है, जहाँ ऑक्सीजन मौजूद होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन इस ऑक्सीजन को पायरोरिक एसिड को मुकम्मल तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को साइक्लिक अंदाज में तोड़ने में इस्तेमाल होती है। क्रेब साइकिल के दौरान कुछ एटीपी पैदा होती है और कुछ कोएंजाइम जैसे एनएडी और एफएडी की ऑक्सीडाइज रिडक्शन होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। Electron transport chain, the last stage of anaerobic respiration, in which NADH2, nicotine, amide, adenosine dinucleotide and FADH2, flavin, amide, adenosine dinucleotide are oxidized to produce ATP and H2O. It takes place at the christie of mitochondria. Second stage है, ये आखिरी मरहला है, आखिरी मरहला है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का, जहाँ पर NADH2 और FADH2 की ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिसके नतीजे में वाटर और ATP पैदा होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही अंजाम होता है। ये प्रोसेस भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में अंजाम होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें आपको फिगर बताई गई है। तीनों आप देख लीजिए, ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में टूट रहा है और एसिडिक साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन काम हो रहा है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा यूजेज ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। Number of processes require energy in the body of an organism. Body provides it from respiratory energy. Following are some processes which utilize respiratory energy: synthesis of molecules, formation of different molecules as well as large molecules from small molecules requires energy. Cell division. During cell division, formation of large molecules like DNA and protein take place, where require energy as well as the movement of chromosome also require energy. Growth without cell division, enlargement growth is not possible, and both require formation of molecules which require energy. अब रेस्पिरेशन एनर्जी का इस्तेमाल जानदार के जिस्म में बेशुमार रिएक्शंस की अंजामदही के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। जिस्म में ये एनर्जी हमें रेस्पिरेशन से मुहैया होती है। हम यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शंस बताएं जिसमें आपको रेस्पिरेटरी एनर्जी की ज़रूरत होती है। पहला है आपको सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स की बनावट के साथ साथ छोटे मॉलिक्यूल्स से बड़े मॉलिक्यूल्स की बनावट के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेल डिवीजन के दौरान DNA और प्रोटीन जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं, जिसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और क्रोमोसोम की हरकत के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है।
तीसरा पॉइंट है ग्रोथ के बगैर जानदार की ग्रोथ रेस्पायरेशन के बगैर मुमकिन नहीं होती, इन अमलों के लिए एनर्जी के बगैर मुकम्मल नहीं होती, इसलिए इसमें भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। Active transport movement of ions and molecules from low concentration to high concentration requires energy. और ions और molecules की movement के लिए भी लो concentration से high concentration की तरफ जाने के लिए हमें ions को move करने के लिए भी energy की ज़रूरत होती है। Muscles contraction, movement of muscles require energy which is produced from chemical energy. Chemical energy converted into kinetic energy. मसल्स को कंट्रैक्शन करने के लिए यानी कि मूव करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। पैसेज ऑफ नर्व सेल मैसेज ऑफ न्यूरॉन इज बेसिकली electrical signals moving long nerve fiber by active transport requires energy. Maintenance of body temperature in higher animals, body temperature is maintained at constant level. This temperature requires energy of respiration. मसल्स कंट्रैक्शन यानी अज़लाती हरकत के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये तवानाई जो है वो केमिकल एनर्जी से पैदा होती है और फिर ये तवानाई काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। और नर्व्स इम्पल्स मतलब असाबी जो पैगाम होता है जो हमारे हम एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं यानी कि जो दिमाग के जो नर्व सेल्स होते हैं उसकी भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और लास्ट है कि हमें बॉडी टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए भी हायर एनिमल्स के अंदर टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए कांस्टेंट लेवल पर हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके बाद आपको बुक के अंदर डिफरेंस दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन, यानी इन दोनों प्रोसेस का इन दोनों में क्या फ़र्क है फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में। Respiration is a process where light energy converted into chemical energy. Respiration is a process where chemical energy converted into energy of ATP. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, जबकि रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है ATP एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। Photosynthesis it occurs only in chlorophyll containing organism and respiration it occurs in all organism. फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ उन प्लेस पर होता है जहाँ क्लोरोफिल मौजूद हो या उन जानदारों में होता है जिनमें क्लोरोफिल मौजूद हो, जबकि रेस्पायरेशन तमाम जानदारों में होता है। It requires light sources that occur only in the presence of light. और it does not require light source so occurs throughout the life. फोटोसिंथेसिस के अमल में हमें रोशनी की ज़रूरत होती है और ये रोशनी की मौजूदगी में ही हो सकता है, जबकि हमें रेस्पायरेशन में लाइट की ज़रूरत नहीं होती। फोटोसिंथेसिस में इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट और इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस का अमल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पजीर होता है, जबकि रेस्पायरेशन का अमल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। reactants are carbon dioxide and water and reactants are carbohydrates and oxygen usually. रेस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर रिएक्ट करते हैं, जबकि रेस्पायरेशन में कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन आमतौर से रिएक्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। Products are carbon dioxide and water in the case of aerobic respiration. हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनते हैं और रेस्पायरेशन में हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आप इसके तमाम लेक्चर यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल है DHSPSS DNCPSS। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे तमाम लेक्चर्स उस पर आप आसानी सुन सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।